آپ نے پروگرام کا پہلا حصہ دیکھا جس میں ہم نے اوورسیز کی کانفرنس کے مختلف شرکاء سے آپ کی بات کرائی، مختلف وفود سے بات کرائی۔ اب ہم آپ کو پروگرام کے دوسرے حصے میں ان لوگوں سے ملاتے ہیں جن سے ہماری پہلے بات نہیں ہوئی کہ وہ اس کانفرنس کے حوالے سے، اس کانفرنس کی قراردادوں کے حوالے سے یا کامیابی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین انہی سے ملتے ہیں۔ ایوب صاحب، ایک بڑا ایونٹ ہوا، بہت سارے مسئلے حل ہوئے۔ آپ کی نظر میں کس مسئلے کی کتنی اہمیت ہے اس کانفرنس کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ جو کانفرنس ہے اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ دو تھے۔ ایک اپنے جو ہمارے تفاضات ہیں ان کے لیے، دوسرا جو پاکستان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی تھی۔ تو یہ پروگرام تو بہت اچھا ہوا۔ یہ جو خوشخبری خان صاحب نے سنائی ہے جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں اور ہمیں ووٹ کا حق دیا گیا ہے، اس کے بعد انویسٹمنٹ اور زیرو انٹرسٹ کے جو لون انہوں نے ہمیں سہولیات مہیا کی ہیں، اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا۔ یہ بہت اہم جو فیصلے ہوئے یہ ہمارے لیے پہلی دفعہ ہوا ہے، کسی نے ہمیں بھی ترجیح دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اوورسیز نے اتنا زیادہ زر مبادلہ پاکستان میں سینڈ کیا ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عمران خان کے ساتھ بہت خوش ہیں اور اس کو ہمیشہ سپورٹ کریں گے، اور سپورٹ کریں گے صرف پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے نہیں، اگر اس لیے کہ وہ پاکستان کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ مظہر صاحب، یہ جو ووٹ کا حق ملا، وراثت کا حق ملا، سرمایہ کاری کو آپ کی تحفظ ملا کانفرنس میں، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان معاملات؟ یہ جو ووٹ کا حق ہے یہ درینہ خواب ہے، ایز اے اوورسیز میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں جو اس کی جو ریکگنیشن دی ہے وہ عمران خان صاحب نے دی ہے، اور آل اوور دی ورلڈ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایز اے اینالسٹ، ایز اے یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے کہ اس اوورسیز کانفرنس میں کتنی ہیوج گیدرنگ تھی، اور سب اتنا ہیپیلی انہوں نے اس کو جوائن کیا کہ کوئی بندہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اور دوسرا اوورسیز کے جو رائٹس ہیں، جو قبضہ مافیا ہے، اس پہ اتنا ورک ہو رہا ہے کہ میں لاسٹ اس میٹنگ میں ایک ڈاکٹر ہیں کینیڈا سے آئی ہوئی تھیں، انہوں نے بتایا جی مجھے میری زمین پہ قبضہ ہو گیا تھا، کوئی منورٹیز تھیں انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا، اور بیکاز آف دس گورنمنٹ، یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہمارے جو یہاں پہ کنسرن لوگ ہیں انہوں نے ان کی ہیلپ کی اور ان کا سارا وہ فگر آؤٹ ہوا، اور ہم اتنے خوش ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ریکگنیشن ملی ہے۔ میں وہاں پہ ڈینش نیشنل ہوں، اور ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ ڈیول نیشنلٹی میرے پاس تھی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اس کو کہاں پہ اس کو یوز کر سکتا ہوں، اور میں ابھی جیسے یسٹرڈے جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو ڈیول نیشنل ہیں ان کو الیکشن بھی کنٹیسٹ کرنے کا ہم موقع دیں۔ ووٹنگ رائٹ تو انہوں نے ہمیں دلوا دیا، اس کے لیے ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہمیں یہ اپنا رائٹ جو ہے لے کے دیے۔ وراثت کا حق مل گیا، ووٹ کا حق مل گیا، بہت سارے مطالبے تسلیم ہو گئے لیکن بہت سارے رہتے بھی ہیں۔ کیسا پایا آپ نے کانفرنس کو، کیا کہیں گے آپ؟ فرسٹ آف آل تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی قومی ادارے کا۔ تو ہم جو ہے میں یہ تھوڑا بتانا چاہتا ہوں 1-2 منٹ اپنے غراض و مقاصد کے، ہم یہاں پہ کیوں تشریف لائے ہیں سارے۔ تو ہماری تقریباً 25 سے زائد ممالک ہیں جو اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں، نہ صرف پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، بلکہ ان کی پوری جو ایگزیکٹو ٹیم ہے، اس کے ساتھ ان کے جو دوسرے نمائندگان ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ اور یہ خان صاحب سے محبت کا واحد ثبوت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد کی سڑکیں ان کے پوسٹر سے اوورسیز سے بڑی پڑی ہے، اور یہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو حکومت نے انیشیٹو لیے ہیں اوورسیز کے لیے، حکومت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ہم نے لیے ہیں، آپ کیسے ووٹ دے سکتے ہیں، انویسٹمنٹ یہاں پہ کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر کچھ ہمارے اپنے مسائل تھے، ظاہر چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، تو ہم نے ڈسکس کیے جو ریلیٹڈ منسٹری ہوتی ہے اس سے، تو انشاءاللہ وہ بھی یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے کہ یہ بہت جلدی ہم آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ جہاں تک ووٹ کا حق ہے، اور یہ جو بہت بڑا حکومت نے ایک حق دیا ہے اوورسیز کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹ سے زیادہ پیسے اوورسیز بیچتے ہیں، لیکن آج تک ان کو کوئی حق نہیں دیا گیا۔ میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور یہ سجیشن بھی دیتا ہوں اور ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں کہ ہمیں نہ صرف ووٹ کا حق دیا جائے بلکہ ہمیں پارلیمنٹ میں نمائندگی بھی اوورسیز کو دی جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک خان صاحب کو زندگی دے، اگلے 5 سال جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو نہ صرف اوورسیز کو ووٹ کا حق ملے گا بلکہ ان کو نمائندگی بھی ملے گی پارلیمنٹ میں۔ پاکستانی قوم سے یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں پرسنلی خان صاحب کے ہم بہت کلوز رہے ہیں، ہم خان صاحب کو جانتے ہیں، ایسا لیڈر کبھی آپ کو نہیں مل سکتا۔
आज खान साहब अगर चले जाते हैं पॉलिटिक्स से तो इसमें खान साहब का कोई नुकसान नहीं, उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सही नुकसान होगा तो इस कौम का नुकसान होगा। पहली दफ़ा आपको पता है कल यूएनओ में करारदाद मंजूर हुई है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और वो किसने की थी? इमरान खान ने की थी। मैं तो कहता हूँ ये शख्स जो है, जब से इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया है उसके बाद ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे पहरा दे रहे हैं। ये शख्स जो है दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना काम कर गए हैं, इनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। ये एक इस्लामी फोबिया के मुतालिक जो लॉ अभी यूएनओ में मंजूर हुआ है उसके बारे में बड़ी ज़बरदस्त काबिश है उनकी, और हम इसको रियली अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इससे पहले किसी लीडर की इतनी ज़रूरत नहीं हुई कि वो उनकी आंखों में बात कर सके, और ये है कि इस सिलसिले में जो भी उन्होंने किया है और वो हमारे लिए बड़ा अप्रिशिएटेबल है। और मैं ये बात ये कहना चाहूँगा कि हाँ, इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये है कि हम सबको उनके साथ खड़े होना है, हर मामले में खड़े होना है। अभी जो हमारे नो कॉन्फिडेंस का जो वोट के बारे में जो बातचीत चल रही है उस सिलसिले में खान साहब हमें फरमाते हैं कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, तो हम ये कहते हैं खान साहब आपने नहीं घबराना, हम आपके साथ हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम आ रहा था हमें जो ओवरसीज़ के हवाले से वो था पीआईए का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब वो लास्ट सरवर साहब ने पार्लियामेंट में कहा था, जो प्रॉब्लम्स आपके सामने रखे थे, जो पायलट्स के थे और डिफरेंट इश्यूज थे, और उसकी सेफ्टी के हवाले से जो पीआईए की जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे, पूरे यूरोप में इस टाइम फ़्लाइट्स नहीं जा रही, क्योंकि आपको पता है वो उनकी जो सेफ्टी एजेंसी है उन्होंने उनको कुछ कंप्लाइंस हमारे कंप्लीट नहीं है, तो उस वजह से उन्होंने रोका हुआ है। और सर्वर साहब ने ये इंश्योर किया है, हमने कहा कि सर लास्ट 2 इयर्स में जितने भी सबसे वो हमारे बुज़ुर्ग सर वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि हमें इतना प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि पहले यूरोप से तकरीबन 6 आवर्स में आप पाकिस्तान पहुँच जाते थे। जो हमारे बुज़ुर्ग अगर एमिरेट्स या कतर से अगर वो आना चाहें, वो ट्रांजिट उनके लिए बहुत मुश्किल है। वही फ़्लाइट जो 6 आवर्स अपने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लेके आती थी, वो अब 14 से 18 घंटे में। अच्छा दुरानी साहब, आपने ये मसला कॉन्फ्रेंस में उठाया, इस पे फिर कोई बात हुई, इसका कोई हल निकला? सर्वर साहब ने कहा कि हमारे जो विद इन 1 or 2 मंथ्स में ये उनके साथ हमारे सारे मामलात सेटल हो रहे हैं, और इंशाल्लाह नए जहाज़ आ रहे हैं, तकरीबन 16 to 20 नए जहाज़ पीआईए के वो बेड़े में आएंगे, और जितने भी जो फ्लाइट्स हम स्टार्ट करेंगे जो पहले भी चल रहे थे, लेकिन उससे और डिफरेंट जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं जहाँ पाकिस्तानी ओवरसीज़ की ये राउंड अबाउट 90 लाख से 10 मिलियन पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो पीआईए तो कभी सर जो है खंखूस हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके तो परमानेंट जो कस्टमर्स हैं और उन्होंने तो पीआईए में सफ़र करना है। तो हम जिस पीआईए ने एमिरेट्स और कतर की हेल्प की, और वो कहाँ पे हैं, और हम जो हैं अपनी पीआईए को नहीं उठा सकते। अगर ये जो इसमें जो चेंजेस हो जाती हैं, नए एयरक्राफ्ट आ जाते हैं, इंशाल्लाह जो खान साहब की पॉलिसीज़ हैं विद इन 1 or 2 years में हम एमिरेट्स के बराबर और कतर को इन सब को पीछे छोड़ देंगे। राजा साहब, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी शिरकत की, बहुत सारे चीज़ों पे बात हुई, पार्टी की तंजीम पे बात हुई, मसाइल पे और वसाइल पे बात हुई। आपने कैसा देखा इस कॉन्फ्रेंस को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं छोटी सी एक बात करता हूँ कि ये जो हम इतना सफ़र करके आए, उसके लिए 2 लाइनों में मैं कहना चाहता हूँ कि सब गवारा है थकन, सारी दुखन सारी चुबन, एक खुशबू के लिए है ये सफ़र जैसा भी है। तो इनफैक्ट हम जो ओवरसीज़ हैं पाकिस्तान से बाहर, वो जो हमारी मोहब्बतें हैं अपने मुल्क से, सुबह उठ के सबसे पहले जो हम करते हैं वो यहाँ की न्यूज़ पढ़ते हैं कि हमारी रूट्स यहाँ पर हैं। मुझे हैरानगी एक बात पे होती है कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो आज तक ये नहीं सोच सके कि इस मुल्क के साथ पिछले 70-72 सालों में क्या खलवाड़ हुई है। क्या हम ये नहीं देखते कि क्या पाकिस्तान को यहाँ पे होना चाहिए था जहाँ पर आज पाकिस्तान है? दुनिया की बहुत सारी ताकतें, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी करते रहे हैं, हम कहाँ पे हैं?
हमारी अपनी जो वकार था जिसके लिए ये पाकिस्तान बना था वो कहाँ पर है। हमने अगर ऐसे ही पाकिस्तान को चलाना था जैसे पहले चलता रहा है तो फिर हमारा आना और ना आना कोई हैसियत अहमियत नहीं रखता। हम जो आए यहाँ पर वो इसलिए आए कि हम अपना हिस्सा डाल सकें इस मुल्क के लिए। हम डालते भी हैं, वो था इकनॉमिक के हवाले से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब हमारा हिस्सा ये भी हो कि अवेयरनेस जो हम वहाँ पर बैठ के देखते हैं कि अब हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं। अब हमारे पास एक वज़ीर आज़म है जिसकी वजह से हमारे मुल्क के पासपोर्ट को इज़्ज़त मिलती है। हमारे पास एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो दुनिया के सामने खड़ा होकर कह सकता है एब्सोल्युटली नॉट। एक लीडर होता है वो विजन देता है कौम को। उमर, आपने कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा बातें हुई, बहुत सारे मसले पेश हुए, सलूशन भी आए, बहुत सारी चीज़ें रह भी गई। आपको कॉन्फ्रेंस कैसी लगी ओवरसीज़? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ हशवानी साहब कि हमें ये कॉन्फ्रेंस इतनी ज़रूरी थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए कि जो हमारे साथ हमारे ज़मीनों पे पहले जो कब्ज़े होते थे, ओवरसीज़ के साथ जो सलूक होता था, वो आज हम इस पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट में चेंजिंग नज़र आ रही है। और जो इज़्ज़त हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हमें बख्शी है, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। आज हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, देखें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बैकबोन है पाकिस्तान के। 30 बिलियन रेमिटेंस इमरान खान की हुकूमत में आया। और ये क्यों आया है? ये इसलिए आया है कि हमें इमरान खान पे यकीन है। वाहिद हमें एक, मैं समझता हूँ कि अगर एक ओवरसीज़ फ्रेंडली हुकूमत है तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, जिन्होंने हमें वोट ऑफ राइट दिया, जिन्होंने हमें इंश्योरेंस दी कि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े नहीं होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। और हम दियारे गैर में रह के हमेशा पाकिस्तान, क्योंकि हमारे आबाओ अजदादों की कब्रें हैं इस मुल्क में, तो हम पाकिस्तान को भूल तो नहीं सकते। पाकिस्तान तो हमारे दिल में बसता है। तो लेकिन हमारे चैलेंजेस थे, जो फॉर्मर गवर्नमेंट्स थी उन्होंने हमारे साथ सलूक नहीं अच्छा होता था, लेकिन अब जो है उसमें चेंजिंग आ रही है, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी थी। तो हम बहुत मशकूर हैं अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कि जिन्होंने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। अच्छा जी, कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड की, कॉन्फ्रेंस ओवरऑल कामयाब रही? आप क्या समझते हैं? आपके मसाइल जो थे वो डिस्कस हुए, कुछ सोल्यूशन भी आए? जी, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से पहले तो मिनिस्टर्स ने ख़ताब किए, उसके बाद हमें सवाल एंड जवाब करने की इजाज़त मिली और उसमें हमने अपने मसाइल रखे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पॉइंटेड किए वो मसाइल, और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि हमारे मसाइल जो हैं वो हल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस जो है बहुत कामयाब हुई है और इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। और खान साहब भी आए, उन्होंने भी यकीन दिलाई कि आपके जो भी मसाइल हैं, PIA के मसाइल हैं, नादा के मसाइल हैं, जिस तरह आप पहले इधर आते थे एयरपोर्ट्स पे, वहाँ आपको तंग किया जाता था, ये अब उन्होंने अलहदा काउंटर हमारे लिए बना दिया है। बैंक्स हैं, बैंक्स में उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट्स बना दिए हैं, जिससे देखें अगर एक छोटी चीज़ सोचे ना, ये पाकिस्तान के अदारे और अवाम, तो 19 मिलियन लोग ओवरसीज़ हैं। वो अगर वो $1000 जो है ना फी पर्सन उस अकाउंट में रख दें तो हमें दूसरे ममालिक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी रही। तारिक, आपने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, वफूद से मिले, तकारीर हुई, अगराज़ व मकासद पे बात हुई, कितनी कामयाब रही ये कॉन्फ्रेंस? मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक कामयाब रही है, क्योंकि अहम चीज़ थी कि ओवरसीज़ को यहाँ पर लाया जाए और पाकिस्तान के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाए सबसे पहले। दूसरी जो बात थी कि जो गवर्नमेंट का एक बयानिया है वो किस तरीके से अपने वर्करों के सामने रखा जाए ताकि वर्कर मज़ीद इस पर काम करें। तीसरी बात थी कि ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं उनको किस तरीके से एजेंडे पर लेकर आया जाए और मशावरत से इनको गवर्नमेंट की पॉलिसियों में शामिल किया जाए। ठीक, उसके बाद जो है कुछ हमारे जो पार्टी के अंदरूनी मसाइल हैं
उस पर मसाइल तो नहीं कह सकते, चैलेंजेस होते हैं, उनको किस तरह बेहतर किया जाए, वहाँ पर हमारी जो सजेशन दी गई हैं उस पर अब मज़ीद काम होगा। अहम जो चीज़ है कि एक पोलिटिकली वर्कर को एक जो है ना क्या क्या कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन मिली है, एक ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि ये पाकिस्तान की पहली पार्टी है जिसने आम वर्कर को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यानी कि वो डिसीजन मेकिंग में आए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और उसके बाद जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, कल उन्होंने कहा है अपने खिताब में कि हम पार्टी को मज़ीद डेमोक्रेटिक, आप असद उमर की बात कर रहे हैं। जी असद उमर साहब, उन्होंने कहा है कि हम इनको जमहूरियत की तरफ मज़ीद लेकर आएंगे, क्योंकि ये जो इंट्रा पार्टी का हमारा एक निज़ाम है वो ओवरसीज़ में इलेक्शन होते हैं ना, कि जो जितने भी हम अहदेदार इलेक्शन के ज़रिए आते हैं। तारिक, क्या मसाइल थे ओवरसीज़ के मोटे मोटे अगर हम बात करें जो हल हुए? सबसे जो अहम जो चीज़ हल हुए हैं कि इन्होंने सहूलत बड़ी दी है कि अब इजी हो गया है गवर्नमेंट के जो जितने इदारे हैं उनसे अपने मसाइल डिस्कस करने का, और उस पर टाइम नहीं लग रहा। और अहम जो चीज़ है, इन्होंने जो अदालतें बनाई हैं वो एक बड़े अच्छा इकदाम है हुकूमत का, ताकि ओवरसीज़ जब पाकिस्तान में वो अपने को सिक्योर महसूस करें, जब सिक्योर महसूस करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट होगी तो मुल्क में डेवलपमेंट होगी। और इसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ना क्या कहते हैं, बिजनेस तो हो रहा है, लेकिन जो अहम जो चीज़ हो रहा है वो ह्यूमन कैपिटल जो है ना वो भी पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो रहा है। उसमें खाली ये नहीं है कि आपने पैसे देने हैं, ह्यूमन कैपिटल की वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ है उसको भी बेहतरी आ रही है। वसीम साहब, हमने देखा कि दुनिया भर से लोग आए इस ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। आप जर्मनी से आए, आप क्या समझते हैं जो कॉन्फ्रेंस के मकासद थे वो पूरे हुए? खान साहब की एक कॉल पे पूरे ओवरसीज़ ने लबाइक कहा, और ये लाइफ में पहली दफ़ा हो रहा है कि पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो ये इतना कामयाब कॉन्फ्रेंस रही हमारी मुख्तलिफ मिनिस्टर के साथ मुलाकातें हुई, हमारी अवान सदर के साथ हमारी मीटिंग हुई, खान साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, और हमने ओवरसीज़ ने हमें आपस में मिलने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो इक़दाम खान साहब ने उठाया है ये हर साल ये होना चाहिए ओवरसीज़ के लिए। और दूसरा मैं ये बात करना चाहूँगा कि फ्रैंकफर्ट के हवाले से, मैं 15 साल से फ्रैंकफर्ट में रह रहा हूँ, कि जितनी चेंजिंग 3 साल में आई हैं शायद पिछले 35 साल में नहीं आई थी। जैसे कि हमें इशूज़ था कि हम पाकिस्तान जब हमने पैसे भेजने होते थे तो हमें मुख्तलिफ मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट खान साहब ने ओवरसीज़ के लिए बनाया है। अभी हम घर बैठ के जो ओवरसीज़ हैं वो अपने पाकिस्तान में अपने वालदैन को जो है वो पैसे भेज सकते हैं। उसके अलावा कुछ और इश्यूज़ थे एम्बेसीज में, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी थी, उसके लिए हमें जो है कि बहुत सी मुश्किलात का सामना था, वो ऑनलाइन कर दिया गया है। इसमें हमने मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए वफूद से, शख्सियात से बात की, उनके तासरात आप तक पहुँचाए।